Hello everyone, welcome to this new session in our series of LR and DI past year papers. My name is Ashish and today I will discuss caselet based DI. I hope आपने पिछले सारे सेशंस जो इस सीरीज में LRDI में पोस्ट हुए थे वो सब देख लिए. अगर नहीं देखे तो you can go to the playlist section of this channel and you can watch all the previous sessions. They will be very helpful for your LRDI section. तो केसलेट बेस्ड डीआई पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा आने लगा है कैट में. दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस सेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड you are also welcome to join our CAT booster classes which are going to start from 3rd of November. 4 days a week होंगी, Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday, in which we will discuss all the advanced level questions from each of the topic related to your CAT एग्ज़ाम. तो जो लोग भी कहीं भी प्रिपरेशन कर चुके हैं और दे आर स्टक एट अ लोअर स्कोर, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. दोज हु आर जस्ट बिगिनर्स, जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, दे शुड नॉट अटेंड दीज क्लासेस बिकॉज ओनली द एडवांस लेवल क्वेश्चंस विल बी डिस्कस. तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ सकती है जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है. सो होप टू सी यू ऑल इन दीज क्लासेस. 3rd नवंबर से स्टार्ट होगी. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इफ़ यू वांट टू जॉइन दीज क्लासेस. So this is the set that we are going to discuss today. The question here is saying Prakash has to decide whether or not to test a batch of 1000 widgets before sending them to the buyer. In case he decides to test, he has two options: either use test 1 or use test 2. Test 1 cost 2 rupees per widget. However, the test is not perfect. It sends 20% of the bad ones to the buyer as good. Test 2 costs 3 rupees per widget. It brings out all the bad ones. A defective widget identified before spending can be corrected at a cost of 25 rupees per widget. All defective widgets are identified at the buyer's end and penalty of rupees 50 per defective widget has to be paid by Prakash. So that is the question given. Then on the basis of that there are 5 questions you need to answer. First pause this video and try to solve this question yourself, then come back to see the solution. तो अगर क्वेश्चन में हम देखें तो आपसे पूछा गया प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विजिट्स इज 100, 200, 120 to 190 and so on. Then if there are 120 defective widgets, then what should he do? Then the third question says if the number of defective widgets is between 200 to 400, then which test should be used? Fourth question says if Prakash is told that there are 160 defective widgets, then which test should be used? एंड फाइनली इफ देयर आर 200 डिफेक्टिव विजिट्स देन विच टेस्ट शुड बी. तो हर एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये पूछा गया कि कौन सा टेस्ट यूज़ करना चाहिए इफ़ देयर आर एन नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स. तो इन सब नंबर्स को लेके हम टेस्ट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, वापस चलते हैं इसके ऊपर. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 1000 विजिट्स एंड देयर आर 2 टेस्ट्स. टेस्ट 1 की कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर विजिट. सो देयर इज टेस्ट 1. The cost here is 2 rupees per widget. However, this is not perfect. It sends 20% of the bad ones to the buyer as good. 20% इसका error rate है. Test 2 उसके बाद आता है 3 rupees per widget इसकी cost है. It brings out all the bad ones, यानी ये 100% true है. Then a defective widget identified before the sending can be corrected using 25 rupees per widget. तो करेक्ट करने में डिफेक्टिव विजिट को 25 रुपये लगते हैं और अगर करेक्ट नहीं कर पाया बायर के एंड पर पता लगा देन 50 रुपीज़ की पेनल्टी देनी पड़ती है. दैट इज़ द कंडीशन गिवन. तो अगर वो टेस्ट 1 कराएगा तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी. मान लेते हैं डिफेक्टिव जो है वो x है, X विजिट्स आर डिफेक्टिव. तो टेस्ट 1 कराने में उसको कितनी कॉस्ट लगेगी. 2 रुपीज़ पर विजिट तो उसको लगाना ही पड़ेगा, यानी 2000 रुपये तो सीधा सीधा हो गया क्योंकि 1000 विजिट्स हैं हमारे पास. तो 2 रुपीज़ पर विजिट के हिसाब से 2000 तो यही हो गया. प्लस टोटल डिफेक्टिव अगर X थे तो उनमें से 80% को तो वो सही सही डिटेक्ट कर लेगा. तो 80% मतलब 4/5 ऑफ X. उसको सही कराने में आपको 25 रुपये लगेंगे. तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4/5 ऑफ X इंटू 25, क्योंकि करेक्ट कराने के लिए आपको कहा गया 25 रुपीज़ पर विजिट लगता है. और अगर टोटल डिफेक्टिव X थे
टेस्ट 1 केवल 80% ही डिटेक्ट कर सकता है, 20% को वो बैड वालों को भी गुड बता देता है. सो हेंस 4/5 ऑफ एक्स के लिए हमें 25 रुपये लगा के पर विजिट के हिसाब से हम उनको सही करा सकते हैं. अब जो बच गए 20% यानी 1/5 ऑफ एक्स, 1/5 इज 20%, उनके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि उनका तो पता ही नहीं लगेगा टेस्ट 1 में, वो तो गुड बता देगा इनको. सो दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ टेस्ट 1. सो दैट विल बी 5 इंटू 10, तो 10x प्लस 20x यानी 2000 प्लस 30x, दैट विल बी द टोटल कॉस्ट फ्रॉम टेस्ट 1 इफ देर आर x डिफेक्टिव विजिट्स. अब टेस्ट 2 की बात कर लेते हैं. ये तो था टेस्ट 1. टेस्ट 2 में है 3 रुपीज़ पर विजिट, तो 3000 तो यही हो जाएगा, प्लस ये तो सारे के सारे सही निकाल लेता है. तो अगर x डिफेक्टिव थे तो सीधा सीधा 25 इंटू एक्स कॉस्ट लगा के आप उसको रिपेयर करा सकते हैं. तो सेकेंड टेस्ट कराने की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3000 प्लस 25 इंटू एक्स, वेयर x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स. अब x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं आपको हर एक क्वेश्चन में. पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 100, 200, 120, 190 अगर ये हैं तो कौन सा टेस्ट कराएं या ना कराएं. उसके बाद आपसे 120 दिया गया, फिर 200 से 400, फिर 160, फिर 200. तो ये सारी वैल्यूज़ लेके हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट क्या आएगी हर एक टेस्ट की, एंड देन वी विल आइडेंटिफाई विच टेस्ट इज़ गुड. सो फर्स्ट विल हैव टेस्ट 1. दिस इज़ 1 वी नीड टू कैलकुलेट. टेस्ट 2 की कैलकुलेट करते हैं, एंड एक और कैलकुलेट कर लेते हैं अगर कोई भी टेस्ट ना कराएं क्या वो बेटर रहेगा या कोई ना कोई टेस्ट कराना बेटर रहेगा. ऐसा हो सकता है कि बिना टेस्ट कराए आप पेनल्टी दे के कम पैसों में बच जाएं. दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी. तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन की वैल्यू मैं ले रहा हूँ. 100 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में. देन यू हैव 120, उसके बाद 160. देन वी हैड एक क्वेश्चन में 120 से 190 के बीच में था, तो 190 भी ले लेते हैं. 200 तो था ही, एंड फाइनली वी हैड 400. तो ये सारी वैल्यूज़ आपको 5 क्वेश्चन में दी गई हैं. तो इन सब से निकाल लेते हैं हम हर एक टेस्ट की कॉस्ट क्या आएगी. देन वी विल आइडेंटिफाई विच इज़ बेटर. सो विल पॉपुलेट दिस टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल 5 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड इजीली. तो अगर 100 डिफेक्टिव विजिट्स यानी x इक्वल्स टू 100, तो टेस्ट 1 की कॉस्ट कितनी आएगी वो देख लेते हैं. तो 2000 प्लस 30 इंटू 100 कर दीजिए. 30 इंटू 100 इज 3000 प्लस 2000, दैट विल बी इक्वल टू 5000. अगर 120 हो जाएगा तो टेस्ट 1 की कॉस्ट कितनी आएगी. 120 रख दीजिए अब इस एक्सप्रेशन में. टेस्ट 1 की कॉस्ट ये थी, तो 120 इंटू 3 इज 360. 360 प्लस 360 इंटू 10 इज 3600 प्लस 2000 इज 5600. तो ये 5600 हो गया. थर्ड वाले में देखते हैं 160 अगर हो जाए x की वैल्यू, तो 160 इंटू 3 इज़ 480, तो ये हो जाएगा 6800. सिमिलरली x को अगर 190 रख दें तो ये हो जाएगा 57 प्लस 2000 7700. अगर इसको 200 रख दे तो ये हो जाएगा 8000, और अगर 400 रख दे तो ये हो जाएगा 14000. तो ये आ गई हमारे टेस्ट 1 की कॉस्ट अलग अलग केसेस में, जहाँ पे हमने डिफेक्टिव जो विजेट्स थे उनकी वैल्यू चेंज कर करके रखी है. ये वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये क्वेश्चंस में आपसे पूछी गई हैं. सिमिलरली आप टेस्ट 2 की कॉस्ट निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू चेंज करके. तो अगर एक्स की वैल्यू 100 है तो टेस्ट 2 की कॉस्ट क्या आएगी. टेस्ट 2 के लिए ये वाली कॉस्ट आई थी हमारी 3000 प्लस 25x. तो इसमें x को रख दीजिए, पहले 100 रख दीजिए, तो 2500 प्लस 3000 दैट इज़ 5500. सिमिलरली सेकेंड केस में अगर इसको हम रखें 120, तो 120 इंटू 25 प्लस 3000, तो ये आ जाएगा 6000. थर्ड केस में इसको रखेंगे 160, तो 4 प्लस 3 इज 7000 आ जाएगा. Those who are wondering how am I calculating it so fast, you can watch a video on this channel जिसका टाइटल है कैलकुलेशन टेक्निक्स. तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टाइप की कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी करने में. 190 पे आ जाते हैं. एक्स को रख दीजिए 190 इंटू 25 प्लस 3000. तो 190 इंटू 25 करोगे तो 190 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे.
तो दैट विल कम आउट टू बी 7750. आई एम डूइंग नथिंग, जस्ट x की वैल्यू रिप्लेस करते जा रहे हैं इस एक्सप्रेशन में और वैल्यूज कैलकुलेट करते जा रहे हैं. अब 200 रख दिए, 25 इंटू 2 इज 5000 प्लस 3000 इज 8000. उसके बाद 400 रख दीजिए, 25 इंटू 4 10,000 प्लस 3 इज 13,000. तो ये आ गया 13,000. तो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हर एक केस में हमने निकाल लिया कौन बेटर है कौन नहीं. अब एक और चीज़ हम निकाल रहे हैं कि अगर हम कोई भी टेस्ट ना करें, सिर्फ पेनल्टी देना चाहें, तब क्या केस होगा. पेनल्टी क्या लगती है, 50 रुपये पर डिफेक्टिव विजिट. डिफेक्टिव विजिट अगर 100 थे तो 50 इंटू 100 हो जाएगा, सीधा सीधा 5000 की पेनल्टी लगेगी. अगर 120 होगा तो 120 इंटू 5 दैट इज 6000. अगर 160 हो जाएगा तो 16 इंटू 5 होता है 88,000. 190 पे आ जाएगा 9500. 200 पे आ जाएगा 10,000 सीधा सीधा. एंड फाइनली 400 पे आ जाएगा 20,000. तो ये आएगी पेनल्टी की वैल्यू. अब ये पूरा हमारा टेबल हो गया. अब हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आप देखें 100 डिफेक्टिव विजिट्स पे टेस्ट 1 की कॉस्ट है 5000, टेस्ट 2 की कॉस्ट है 5500, और अगर कोई भी टेस्ट ना करें तो भी 5000. यानी इवन इफ यू डोंट डू एनी टेस्ट आपका एफर्ट बच जाएगा और पेनल्टी भी उतनी है जितनी टेस्ट की कॉस्ट है. तो यानी 100 विजिट्स पे आपको टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विजिट्स इज लेस देन 100. अगर हैं तो उसको टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 100 विजिट्स पे टेस्ट की कॉस्ट भी 5000 है और बिना टेस्ट के अगर पेनल्टी देना चाहे उसकी कॉस्ट भी 5000. दोनों इक्वल है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है. लेकिन अगर 100 से कम होंगे तो ऑब्वियसली उसको टेस्ट कराने में ज़्यादा पैसा लग जाएगा. तो 100 से कम पे उसको टेस्ट नहीं कराना चाहिए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्वेश्चन सेज इफ देयर आर 120 डिफेक्टिव विजिट्स देन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए. 120 पे आ जाता है सीधा सीधा, ये रहा 120. तो टेस्ट 1 की कॉस्ट है 5600, टेस्ट 2 की कॉस्ट है 6000. तो क्लियरली उसको टेस्ट 1 कराना चाहिए क्योंकि उसमें कम पैसा लगेगा. सो ही शुड गो फॉर टेस्ट 1 ओनली. सो दैट इज डी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन सेज इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव विजिट्स इज बिटवीन 200 टू 400. 200 से 400 के बीच में अगर है तो 200 पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों की इक्वल कॉस्ट थी. 400 पे टेस्ट 1 इज 14,000, टेस्ट 2 इज 13,000. यानी 200 से जैसे जैसे 400 की तरफ बढ़ेंगे टेस्ट 2 ज़्यादा इफेक्टिव होता रहेगा. सो दैट मीन्स 200 से 400 के बीच में अगर कुछ है तो ही शुड गो फॉर टेस्ट 2. सो ही शुड गो फॉर टेस्ट 2 ओनली. दैट इज सी ऑप्शन. फोर्थ क्वेश्चन सेज इफ प्रकाश इज टोल्ड दैट द लॉट हैज 160 डिफेक्टिव विजिट्स देन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए. 160 ये रहा यहाँ पे. 160 में टेस्ट 1 इज 6800, टेस्ट 2 इज 7000. तो ही शुड गो फॉर टेस्ट 1 इन दिस केस. That is A option. And last question says if there are 200 defective widgets then कौन सा टेस्ट कराना चाहिए उसको. 200 के केस में 8000 तो वो कुछ भी करा सकता है. आइदर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों में सेम कॉस्ट लगेगी. सो मे यूज़ आइदर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 ए ऑप्शन. सो आपने देखा कि अगर हम क्वेश्चंस में जो जो फिगर्स थी उनको अपने जनरल जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था x की वैल्यू लेके उसको x को रिप्लेस करते जाएं तो इजीली सारे क्वेश्चन एक ही टेबल से सॉल्व हो सकते हैं. So I hope you liked the question set that we have discussed. We'll again meet with something new. Till then, keep practicing.